Good morning, children. Good morning, everyone. Everybody keep your camera open. Join your hands, close your eyes. Prayer position. ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तू ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Now sing together DAV Gan. अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय दिए विजय जय दिए विजय जय प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय दिए विजय जय दिए विजय जय दयानंद से प्रेम भक्ति ले हंसराज से त्याग शक्ति ले धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय दिए विजय जय दिए विजय जय सुख समृद्धि इसकी लहरें प्रेम शांति इसके तट ठहरे सघन शांतिमय प्रबल क्रांतिमय लिए अटल निश्चय दिए विजय जय
DAV जय जय। Yes, children. Good morning, everyone. Today we are here to celebrate birth anniversary of our beloved Mahatma Gandhi ji, which falls on 2nd October, the birthday of the man known as the father of the nation. Yes, children, do you know what is Gandhi Jayanti? Mahatma Gandhi, the apostle of peace and the father of the nation, was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. Gandhi Jayanti is celebrated on the very day every year on the birthday of Mahatma Gandhi, popularly known as Bapuji. Let's see the presentation by Aditya Sharma of class 4A, who wants to present us with a brief introduction of Gandhiji. My name is Mohandas Kamchand Gandhi and I born 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. And my father's name is Kamchand Gandhi and my mother's name is Putali Bai. All the world know me, Gandhi, Bapu, and father of nation. I go to England, study law. I fight against the British Raj in India. I tell you that go for my country. Go for my country. I will go in my country. You will go in your country, not us. I believe in good honesty. I teach the word, no violence. I tell so about Charkha or pupil. Charkha can be made one cloth. There is a one logo in our flag also. Take a broomstick and take a basket and broomstick. Then only you can clean the city. Then only you can clean the city. Bring in blue change. Then only you can change it new. Then only you can change the world. Yes, now I want to tell you Mahatma Gandhiji's role in the freedom movement. Gandhiji played an important role in freedom movement. During the Indian freedom struggle, Gandhiji advocated many peaceful protests and demonstrations. These protests were conducted with the principle of non-violence. He started the Dandi Salt March in 1930. He was the man behind the Quit India movement in 1942, which eventually paved the way for freedom of India from Britishers in 1947. Yes, now not everyone knows who bestowed the title of Mahatma to Gandhiji. Rabindranath Tagore was the person who gave the title for Mahatma to Gandhiji on 6th March 1950. Gandhiji has written numerous books, but the first book written by Mahatma Gandhi was The Story of My Experiments with Truth. Now, let us watch the performance by students from class 3 to 8. नमस्ते मेरे प्रिय सहपाठियों एवं अध्यापिकाओं। आज 2 अक्टूबर के दिवस पर मैं आपको गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने वाली हूँ। आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका सारा हिंदुस्तान। जी हाँ, आज ही के दिन भारत के 2 ऐसे महान सपूतों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने महान कर्मों से पूरे हिंदुस्तान को अपना कर्जदार बना लिया।
हम बात कर रहे हैं बापू महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। गांधी एक भरोसा तो शास्त्री एक विश्वास। महात्मा गांधी एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक भरोसा और विश्वास है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। वो एक वचन है जो हर कसम के साथ होते हैं, तो वहीं शास्त्री एक शपथ है जो हमें अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए यह दोनों हमसे तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। यह दोनों यही हैं, हमारे पास, हमारे बीच, हमारे साथ। बापू का जन्मदिन देश भर में गांधी जयंती और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की स्वतंत्रता में बापू के अहिंसक संघर्ष का महत्वपूर्ण योगदान है, तो वहीं भारत को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस योगदान को जाया नहीं होने दिया। उन्होंने लोगों को यह बताया कि अगर आप चाह लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। वह गांधी जी के विचारों और जीवन शैली से बेहद प्रेरित थे। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय देश सेवा का व्रत लिया था और देश की राजनीति में कूद पड़े थे। उपनाम लगाना छोड़ दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जाति से श्रीवास्तव थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ अपना उपनाम लगाना छोड़ दिया क्योंकि वह जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने नाम के साथ जुड़ा शास्त्री काशी विद्यापीठ द्वारा दी गई एक उपाधि है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 2 साल तक काम किया। उनका प्रधानमंत्रित्व काल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। गांधी जी से केवल भारतीय ही प्रभावित नहीं थे, बल्कि विदेशों में भी गांधी जी के आदर्शों को माना जाता रहा है। साबरमती के इस संत ने अपने अहिंसावादी नीतियों से यह जता दिया कि इंसान अगर अपने आप पर भरोसा कर ले तो वह जीवन की हर कठिनाइयों का सामना कर सकता है। इन 2 देश के महान सपूतों को मेरा दिल से शत शत नमन। उम्मीद रखती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई। धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Arushi Gupta. I am from class 5th B. Today I am going to tell about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great freedom fighter. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar, Gujarat. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma Gandhi was also known as Bapu. His father's name was Karamchand Gandhi and mother's name was Putlibai Gandhi. On 2nd October, we celebrate Gandhi Jayanti every year. It is a non-violence day in India. We celebrate this day as national celebration in India. We pay tribute to Mahatma Gandhi in his memorial at Rajpath, Delhi. Raghupati Raghav Raja Ram, which is the favorite bhajan of Gandhi, make us feel his divine power. Children play a role play on Mahatma Gandhi. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आज आपको लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की जयंती पर एक छोटी कविता सुनाने जा रहा हूँ। एक थे लाल और एक थे बापू, दोनों में था अलग सा जादू। एक थे लाल और एक थे बापू, दोनों में था अलग सा जादू। दोनों की थी एक ही बोली, थी पीछे उनके हम सब की टोली। दोनों की थी एक ही बोली, थी पीछे उनके हम सब की टोली। फिर खुद पे रहा ना किसी को काबू। एक थे लाल और एक थे बापू, दोनों में था अलग सा जादू। लाल जी बोले जय जवान जय किसान, बापू बोले रघुपति राघव राजा राम। लाल जी बोले जय जवान जय किसान, बापू बोले रघुपति राघव राजा राम। नारों से उनके देश था आंसू, एक थे लाल और एक थे बापू, दोनों में था अलग सा जादू। देश का सुख था उनका सपना, कर दिया जीवन न्यौछावर अपना। देश का सुख था उनका सपना, कर दिया जीवन न्यौछावर अपना। दोनों को याद करे ना अब क्यों, एक थे लाल और एक थे बापू, दोनों में था अलग सा जादू। आओ मिलकर दीप जलाए
जन्म दिवस दोनों का मनाएं। आओ मिलकर दीप जलाए, जन्म दिवस दोनों का मनाएं। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को हमारा शत शत नमन। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है शिवांश मिश्रा, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने गांधी जयंती पर एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 2 अक्टूबर खास बहुत है, इसमें है इतिहास छिपा। इस दिन गांधी जी जन्मे थे, दिया उन्होंने ज्ञान नया। सत्य अहिंसा को अपनाओ, इसमें है सदा भलाई। इनके दम पर गांधी जी ने अंग्रेजों की फौज भगाई। इस दिन लाल बहादुर जी भी इस दुनिया में आए थे, ईमानदार और सबके प्यारे कहलाए थे। नहीं भुला सकते ये दिन है तो बहुत महान। भारत का गौरव है तिरंगे की शान। भारत का गौरव है तिरंगे की शान। धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य शर्मा है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको गांधी जी के 3 मंत्रों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आइए चलते हैं। गांधी जी के 3 मंत्रों के दिए गए संदेश। ये है गांधी जी का पहला मंत्र, इसका नाम है विचारू। ये हमको ये संदेश देता है कि हमें कभी भी बुरा नहीं देखना चाहिए। ये है गांधी जी का दूसरा मंत्र, इसका नाम है चीका जारू। ये हमें ये संदेश देता है कि हमें कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये है गांधी जी का तीसरा मंत्र, इसका नाम है ईवा जारू। ये हमें ये संदेश देता है कि हमें कभी भी बुरा नहीं सुनना चाहिए। गांधी जी के 3 मंत्र सीख देते अनमोल। तुम भी ये सब बातें सीखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अगर तुम भी ये मंत्र अपना लोगे तो सबके प्रिय बन जाओगे। धन्यवाद। Now come to the Swachh Bharat mission. The Indian government launched this initiative in the memory of Mahatma Gandhi. Its aim was to create nationwide awareness regarding the importance of cleanliness in our surroundings, in our day-to-day life. It was launched in 2014 by Prime Minister Narendra Modi, and at its core lied Mahatma Gandhi's idea of a clean living space and an environment to prosper in. Now children, let's remember Father of the Nation by speaking one of his famous quotes. If I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it, and even if I may not have it at the beginning. Children, if a person believes that he or she can achieve something, he should try or keep working towards it, even though the goal may not be accomplished in one go. So we should keep working hard to achieve our goals. With this thought in mind, let's proceed to our respective classes. Thank you so much, everyone.